یہ کہانی ہے ہزاروں سال پرانی، منظر ہے گولہ اور بارود برساتی توپوں کا، سلطنت ہے بازنطینیوں کی، شہر ہے قسطنطنیہ کا، جس کا محاصرہ کیا محض 21 سالہ عثمانی سلطان محمد دوئم نے۔ کانوں میں 10 سال پہلے ہونے والے تاریخی الفاظ گھوم رہے ہیں۔ وہ تاریخی الفاظ کیا تھے؟ ناظرین، اس ویڈیو کے آغاز میں ہم نے جس منظر کا ذکر آپ کے سامنے کیا، جس میں سلطان محمد دوئم ایک شاندار گھن گرج کے ساتھ گھوڑوں پر سوار قسطنطنیہ آئے تھے کہ مورخ ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ دنیا نے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں 69 یا 70 توپیں ایک جگہ اکٹھی نہ دیکھی ہوں گی۔ سلطان جب قسطنطنیہ فتح کر چکے تو وہ کیا سوچ رہے تھے؟ سلطان محمد یاد کر رہے تھے وہ الفاظ جو ان کے والد سلطان مراد نے سن 1443 میں انہیں ایک تاریخی شہر اور اس کی مضبوط دیواروں کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو کر کہے تھے کہ قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے، وہ سرزمین جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی۔ ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ ان دیواروں کو دیکھو جو ہر فوج کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، انہی دیواروں نے مجھے روکا۔ سلطان محمد دوئم نے اپنے والد کی باتیں سن کر ان سے اس وقت پوچھا تھا کہ انہیں یعنی کہ قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرا کیوں نہیں دیتے۔ جب ان کے والد نے جواب دیا کہ ابھی اتنا طاقتور ہتھیار نہیں بنا جو ان دیواروں کو گرا سکے، تو شہزادے محمد دوئم نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ والد محترم، ان دیواروں کو میں گراؤں گا، اور جب میں سلطان بنوں گا تو قسطنطنیہ کو میں فتح کروں گا۔ اور پھر انہی بولے گئے الفاظ کو سچ کر دکھایا۔ شہزادے محمد نے سلطان محمد دوئم بننے کے بعد اپنے والد سے کیے وعدے کو پورا کیا۔ سن 1453 میں قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو بھی شکست دی اور کائنات کا دل سمجھے جانے والے اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بھی بنایا۔ ناظرین، دنیا میں کچھ بھی ناقابل یقین کارنامہ ہو، اس کے پیچھے یقیناً ناقابل یقین محنت بھی ہوتی ہے، لیکن سلطانوں کے اتنے بڑے محاصرے کی وجہ کوئی بہت بڑا جنگی محاذ نہیں تھا، بلکہ ایک بڑا ہتھیار تھا، بلکہ ہتھیاروں کا جھنڈ تھا۔ وہ جھنڈ جو اتنا منہ زور تھا کہ اس کے آگے کوئی نہ ٹک پائے۔ اس پہ مورخ آگسٹن اپنی کتاب گنز فار دی سلطان ملٹری پاور اینڈ دی ویپنز انڈسٹری ان دی آٹومن امپائر میں لکھتے ہیں کہ عثمانیوں کا قسطنطنیہ فتح کرنا ایک مثال ہے کہ سن 1450 تک توپیں محاصروں پر مبنی جنگوں کے لیے فیصلہ کن ہتھیار بن چکی تھیں، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ 14ویں صدی تک بڑے پیمانے پر گولہ اور بارود بنانے میں خود مختار ہو چکی تھی، اور یہ خود مختاری ایسی تھی کہ یورپ والے بھی ڈرتے تھے۔ اسی اسلحے کی خود مختاری نیٹ فلکس کی فلم آٹومن میں کچھ اس طرح سے دکھائی گئی ہے کہ اوربان نامی ایک کاریگر سلطان محمد دوئم کے دربار میں پیش ہو کر ایک توپ کا ڈیزائن پیش کرتا ہے، جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے گولے شہر کی تاریخی دیواروں کو گرا دیں گے۔ یہ توپ 8 میٹر لمبی ہوگی، جبکہ اس کی قیمت 10,000 دکت ہوگی، یعنی کہ دکت اس دور کی کرنسی تھی۔ اس پیشکش کو دیکھ کر سلطان بہت خوش ہوتے ہیں اور کاریگر سے کہتے ہیں کہ اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دیں تو اسے 4 گنا زیادہ قیمت ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ توپ 3 ماہ میں تیار ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس کاریگر کا نام تاریخ میں استاد اوربان بتایا گیا ہے اور اس کا تعلق ہنری سے تھا، اور وہ نہایت کاریگر مستری تھا۔ اوربان نے جب یہ توپیں بنانے کی پیشکش سلطان محمد دوئم سے کی تو اس نے ان کو بتایا کہ میں پہلے قسطنطنیہ میں بازنطینی بادشاہ کو اس توپ کی پیشکش کر چکا ہوں، لیکن وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی توپ بنانے کے ضروری وسائل تھے، اس لیے میں یہ پیشکش لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد دوئم نے اوربان کی پیشکش کو قبول کر لیا تھا۔ ناظرین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ توپیں عام توپوں کی طرح صرف گولہ بارود نہیں اگلتی تھی، بلکہ عثمانیوں کی دہشت دنیا میں نہایت مختلف اور دہشت طاری کر دینے والی توپوں کی وجہ سے تھی۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ ناظرین، جب سلطان نے کاریگر اوربان کو ہاں کہہ دیا تو اوربان نے توپ تیار کر لی، اب اسے قسطنطنیہ پہنچانا تھا۔ یہ توپ کس طرح سے پہنچائی گئی، اس کی بھی تفصیل آگسٹن اپنے ایک مضمون میں بتاتے ہیں، جہاں انہوں نے لکھا کہ اس کام کے لیے 30 ویگنز کو آپس میں جوڑا گیا، جنہیں کھینچنے کے لیے 60 طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ویگنوں کا توازن خراب نہ ہو اور توپ کہیں گر نہ جائے۔ ویگنوں کے دونوں طرف 200 اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا۔
तोप के रास्तों को हमवार करने के लिए 50 कारीगर और उनके 200 मुआवन आगे चल रहे थे, जो इन रास्तों पर सड़क को हमवार करना और पुल तामीर करने का काम कर रहे थे। इस तरह से कुस्तुनतुनिया तक के सफर में तकरीबन 2 माह लगे और फरवरी और मार्च गुजरने के बाद ये तोप कुस्तुनतुनिया से 5 मील दूर मुनासिब जगह देखकर नस्ब कर दी गई। ऑगस्टन ने लिखा है कि कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान ये तोप दिन में 7 बार फायर कर सकती थी और मई के महीने में इसकी मुरम्मत भी करनी पड़ती थी, लेकिन इसके भारी गोलों ने मैसूर शहर की दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचाया और उस्मानियों की फतह में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, इस तोप को बनाने और अस्करी ताकत में इजाफे को ही सिर्फ सल्तनत उस्मानिया की वजह करार नहीं दिया जा सकता। जब कुस्तुनतुनिया फतह हुआ उस वक्त उस्मानी सुल्तानों के नाम का डंका भी बजता था। उसी पर ऑगस्टन लिखते हैं कि सल्तनत गैर मामूली तौर पर काबिल हुक्मरानों से नवाजी गई थी, यानी कि सिर्फ ये तोपें ही वो वजह नहीं थी बल्कि सुल्तान भी काबिल थे। सुल्तान दोइम इतने काबिल थे कि यूरोप के कई हुक्मरान उनके गर्विदा थे, और जब से उन्होंने ये देखा था कि ये तोपें बनाने की इजाजत सुल्तान ने दी है तो यूरोप के हुक्मरानों ने अपने मिस्त्री और असलहा बनाने वाले माहिरीन सुल्तान के पास भेजे ताकि वो भी इनकी तरबियत कर सकें। नाज़रीन, इस पेशकश पर उस्मानियों ने सोचा कि महज चंद लोगों के लिए तो ऐसी तरबियत गाह का इत्तमाम नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये सोचा गया कि क्यों ना एक बहुत बड़ा तोप खाना लगाया जाए। ना सिर्फ तोप खाना लगाया गया बल्कि जब सुल्तान कुस्तुनतुनिया फतह कर चुके तो सल्तनत उस्मानिया की तरफ से फतह होने वाले इलाकों के कारीगरों और हुनरमंदों को अपने पुराने पेशे ना सिर्फ जारी रखने की इजाजत दी गई बल्कि उनके पास तरक्की के और भी मौके आ चुके थे। यही सूरत हाल कैदी बनने वाले कारीगरों के साथ भी थी। उन्हें भी इस तोप खाने में कारीगर के तौर पर काम करने पर रखा जाने लगा। इस बात का मुकम्मल इयादा नहीं किया जा सकता कि कब इस तोप खाने पर काम चालू हुआ, लेकिन तारीख बताती है कि इस तोप खाने का क़याम सुल्तान मुराद दोइम के दौर 1421 से 1451 में हुआ। इसके बाद तोप खाना बन गया और यहाँ दूर दूर से कारीगर आने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पर तोप बनाने वाले कारीगरों की एक बड़ी तादाद जमा हो गई। ये तादाद इतनी बड़ी थी कि इस्तांबुल में आने वाले यूरोपियन हुक्मरान इसको देखकर हैरान थे। और नाज़रीन, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये थी कि मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब मिलकर एक तोप खाने में काम कर रहे थे। लेकिन उस जमाने में मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन का मुख्तलिफ हुक्मरानों और सल्तनतों के लिए काम करना अनोखी बात नहीं थी। इस तोप खाने में काम करने वाले लोगों के हवाले से मुतादिद सफीरों और तारीख दानों ने लिखा, जिनमें से फ्रांस के एक सफीर ने लिखा कि सन 1547 से 1548 में मैंने देखा कि वहाँ कई फ्रांसीसी, हस्पानी, जनवा और सिसली के माहिरीन काम कर रहे थे। सेवॉय के एक मुसाफिर जेरोम मोरांद ने सन 1544 में लिखा कि उन्होंने इस्तांबुल की फाउंड्री में 40 से 50 जर्मन भी देखे जो सुल्तानों के लिए तोपें बना रहे थे। नाज़रीन, ऐसा नहीं कि ये तोपें बनाने का कारखाना सिर्फ उस्मानियों के यहाँ इस्तांबुल में ही था। इससे पहले वेनिस में गन स्कूल और हिस्पानिया में भी एक मालगा की फाउंड्री थी। लेकिन उस्मानियों का तोप खाना इतनी तेजी से यूरोप समेत दुनिया भर से कारीगर भर रहा था कि सारे तोप खाने बंद होना शुरू हो गए। इस सारी सूरत हाल पर जब उस्मानी मुकम्मल तौर पर बारूद और ईंधन उगलती तोपें बनाकर अहले आलम के लिए दहशत की अलामत बन रहे थे तो रूस और फ्रांस भी अपनी अस्करी ताकत को मजबूत बनाने के लिए सोचने लगे। इसके पेश नजर रूस ने असलहे की मशहूर तला फैक्ट्री हॉलैंड के एक बाशिंदे आंद्रेस वेनस ने खड़ी की थी और उन्होंने मुआहदे के मुताबिक इस दौरान रूसी कारीगरों को ट्रेनिंग भी दी। इसके बाद जब इस ट्रेनर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो रूस ने खुद इस फैक्ट्री को चलाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो ना चली। रूस किसी भी तौर पर उस्मानियों को इस जंग में आगे निकलने नहीं देना चाहते थे, सो उन्होंने सन 1648 में आंद्रेस को 20 साल के लिए फिर वापस बुला लिया। लेकिन नाज़रीन, रूसियों की तला फैक्ट्री उस्मानियों के तोप खाने के मुकाबले पर कभी ना आ सकी। उस्मानियों का तोपची उस्ताद ओरबान जो तोपें बनाता था वो ऐसी कवि हैकल तोपें थीं कि जिन्हें बम्बार्ड यानी कि गोलियां और बारूद उगलने वाली कहा जा सकता है। इन तोपों की साख्त और शक्ल पर ऑगस्टन अपनी किताब गन्स फॉर द सुल्तान में लिखते हैं कि उनमें से सबसे बड़ी तोप का कतर 50 से 80 सेंटीमीटर और वजन 6000 से 16000 किलोग्राम था और इनसे फायर होने वाले गोलों का वजन 150 से 700 किलोग्राम तक होता था। इससे पहले ये तोपें कहीं नहीं बनी थीं और जहां बनना शुरू हुई थी वो फैक्ट्रियां और कारखाने बंद हो चुके थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन तोपों को बनाने वाले कारीगरों की एक 28 अफराद पर मुश्तमिल ऐसी जमात थी जिसका नाम जमात तोपचाने आंग्रियान था। इस खास जमात ने ढले हुए लोहे की 22 तोपें तैयार की, जिनमें 4 बड़ी तोपों की लंबाई 714 सेंटीमीटर थी
और 9 छोटी तोपों की औसत लंबाई 491 सेंटीमीटर थी। ये तोपें 6210 किलोग्राम औसत वजन के साथ यूरोप में वजनी तरीन तोपों में शामिल थी। ताहम ओरबान ने इस तोपखाने पर कारीगरों की ऐसी तरबियत की कि इसके नक्शे कदम पर चलते हुए उस्मानियों ने ऐसी तोपें बनाई कि उस्मानियों से किसी भी किस्म की दुश्मनी लेने का कोई सोच भी ना सकता था। सुल्तान मोहम्मद दोयम के सन 1467 में तैयार होने वाली एक कांसी की तोप का वजन 17,500 किलोग्राम था। इसी तरह 15वीं सदी में बनी एक 18 टन से जायद वजनी तोप सन 1878 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने मलका विक्टोरिया को तोहफे में भी दी। एक ऐसा वक्त आया कि इन तोपों के साइज की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हुआ, तो इस मसले के हल के लिए इन तोपों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल ऊँटों और दूसरे जानवरों पर लाद कर मुहासरे की जगह पर पहुंचा दिया जाता और वहीं तोप तैयार होती। इन बड़ी बड़ी बमबार तोपों ने बाज़ंतीनियों, बल्कान और हंगरी के कई किले फतह करने में उस्मानियों की मदद की। उस्मानी अपना असर रसूख ऐसा फैला चुके थे कि बड़े बड़े किलों को महज चंद दिनों में राख का ढेर बना देते। मसलन सन 1521 और 1567 के दौरान हंगरी के सिर्फ 13 गैरिजन 10 दिन में और सिर्फ 9 किले 20 रोज से ज्यादा उस्मानियों के मुहासरे के सामने खड़े ना हो सके। नासरीन, ऐसा इसलिए नहीं था कि उस्मानी सारी की सारी फतूहात सिर्फ इन तोपों की घन गरज की वजह से ही थी। उस्मानी जहां ये तोपें बनाना बहुत बेहतर तरीके से जानते थे, वहां वो इनको चलाना भी बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। न सिर्फ तोपें बनाना बल्कि तोपों के लिए आतशी असले का हसूल, उसके लिए बारूद की फराहमी और इसके इस्तेमाल के लिए खुसूसी दस्ते कायम करना एक चैलेंज था। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसमें कोई भी रियासत काम ना कर सकी सिवाय उस्मानियों के। ऐसा नहीं कि गोला और बारूद उस्मानियों ने 15वीं सदी में बनाना शुरू किया, बल्कि अगर 13वीं सदी का भी जायजा लिया जाए तो उस्मानियों ने पहली बार 1389 सोवो की जंग में ही तोपों का इस्तेमाल किया था और इस दौर में तोप बनाने वाले तोपची का नाम हैदर तोपची था। इसलिए उस्मानियों ने 15वीं सदी तोपखाने में गोलों और बारूद के लिए तनख्वाहदार इन्फेंट्री के तौर पे जेनिसरी दस्तों और आतिशी असले की तैयारी और इस्तेमाल के लिए खुसूसी दस्तों का क़याम किया। इस तमाम तर हिकमत अमली के बाद यूरोप समेत तमाम इलाके जिनमें तोपखाने या जंगी आलात के बनाने के छोटे छोटे मराकज थे, उनका कायम रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस पैमाने पर जंगी आलात और तोपें बनना शुरू हो गई थी, छोटे सरमायादार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 14वीं और 15वीं सदी के उस्मानी सुल्तानों की अमलियत पसंदी ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और आतिशी असले की मुस्तकिल बुनियादों पर पैदावार के लिए इंतजामी ढांचे की तश्कील को आसान बना दिया। बहिरा रोम, हंगरी और बाज़ंतीनी सल्तनत के मजबूत किलों ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी जंगी हिकमत अमली बदलें और नए असले को अपनाएं। नाज़रीन, इन सब के बाद उस्मानी इन तोपों और असलहा बारूद बनाने में 16 से लेकर 18वीं सदी तक इतने खुद कफील हो चुके थे कि पूरी दुनिया उनके बनाए आलात और असलहा बारूद से डरती थी। कोई भी दुश्मन इन इलाकों के करीब आने तक का सोच नहीं सकता था। एक वक्त ऐसा आया कि उस्मानियों ने हर साइज की तोप इस्तेमाल की, जिसमें 300 से 500 ग्राम के गोले फेंकने वाली तोपों से लेकर 31 से 74 किलोग्राम के गोले फेंकने वाली तोपें शामिल हैं। यानी कि जैसा महाज होता, उस्मानी वैसी ही तोपें और उतना ही असलहा बारूद लेकर मुखालिफ पर धावा बोल देते। यहाँ तक कि तोपों के साथ के हवाले से नाम रखे जाने लगे। उस्मानियों की एक तोप का नाम किला कोब था, जो बैक वक्त 12 से 20 किलोग्राम के गोले दागती थी, जबकि एक तोप जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई, उस तोप का नाम दरबजीन था और इसके गोलों का वजन 2.5 किलो था। नाज़रीन, उस्मानियों की तोप इंडस्ट्री इतनी कामयाबी से चली कि उस्मानी इस तमाम तर असलहा और गोला बारूद की पैदावार में दिन ब दिन मजबूत और खुद कफील होते जा रहे थे। उस्मानियों के यहाँ कॉपर बड़ी मिकदार में था, सो कोई परेशानी ना थी। यहाँ तक कि सदियां इसी काम में गुजारने के बाद लोहा, पीतल और लेड भी घर से ही मिलने लगा। सिर्फ एक टीन था जो उनको बाहर से मंगवाना पड़ता था। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा और इसमें कमी आना शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त यूरोप में मजीद कारखाने लगना शुरू हो गए और उस्मानियों ने एक बार फिर अपनी खोई साख्त और दहशत की बहाली के लिए असलहा साजी में फिर तेजी से पैदावार बढ़ा दी और इस बहाली में सबसे बढ़कर किरदार था कलमी शोरे का। नाज़रीन, ये शोरा एक ऐसा जुज़ था जिसके बगैर बारूद साजी मुमकिन ना थी। इसी इक़दाम के पेश नज़र सल्तनत ने मुख्तलिफ इलाकों में इसके लिए कुछ प्लांट कायम किए, जिनका इंतजाम नहायत ही कारीगर लोगों के हाथों में दिया गया। बाज़ इलाकों में कलमी शोरे की पैदावार सैकड़ों
एकड़ों की तादाद में देहातों को सौंप दी गई, जिन्हें इस खिदमत के बदले सिर्फ टैक्स में छूट मिल जाती थी, यानी कि उन्हें सारा दिन कलमी शोरा ढूंढना होता और बदले में उनके तमाम तर टैक्स माफ कर दिए जाते। ये सिलसिला चला तो उस्मानी खुद कफील हो गए। खुद कफील होने के बावजूद उस्मानियों को जिस बारूद की सालाना जरूरत थी वो तकरीबन 540 टन थी, और जो पैदावार कलमी शोरे से की जा रही थी वो महज एक हिस्सा था। एक वक्त आया कि जंग करने के लिए पैदावार को बढ़ाना उस्मानियों के लिए एक चैलेंज सा बन गया। नाज़रीन, इस बारूद की कमी पर सुल्तान को खत लिखे जाने लगे, अवाम परेशान होने लगी। उस्मानियों की बारूदी महाज की कहानी पर लिखी जाने वाली किताब गन्स फॉर दी सुल्तान में यह जिक्र कुछ इस तरह से मौजूद है कि वजीर आजम हसन पाशा ने सन 1603 को सुल्तान के नाम इल्तिजा की। मेरे मोहतरम बादशाह, जैसा कि अजीम आका को मालूम है कि सुल्तानों की मुहिम्मात की असल ताकत बारूद है। बारूद के बगैर जंग नामुमकिन है। बारूद दूसरी चीजों की तरह नहीं, जहाँ बारूद की कमी होती है वहाँ सोने के सिक्कों का समुंदर भी बारूद की जगह नहीं ले सकता। किलों का दिफा और जंगी मुहिम्मात बारूद की मदद से ही होती हैं। और नाज़रीन, यही वो इल्तिजा थी जिसकी वजह से कलमी शोरे के कारखानों में मजीद काम तेज कर दिया गया। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, अहले यूरोप समेत तमाम इलाकों ने ऐसे कारखाने लगाना शुरू कर दिए और अब इतने बड़े पैमाने पर काम होने लगा कि उस्मानियों की अकेली हैसियत का खासा कम होने लगा। नाज़रीन, 17वीं सदी के दस्तावेजात देखें तो मालूम होता है कि यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन बारूद दूसरे ममालिक से हासिल किया जाने लगा। 84,600 किलो एक बार 1778 में, फिर 95,485 किलोग्राम बारूद 1782 में स्वीडन से मंगवाया गया। फिर ठीक एक साल बाद यानी कि 1783 में 39,198 किलोग्राम बारूद इंग्लैंड से मंगवाया गया। बारूद अब बाहर से आने लगा। इस बात का इल्म जब उस्मानी सुल्तान सलीम स्वयं तक पहुंचा तो उन्होंने इक़दामात का फैसला किया और बारूद के खर्च से बचने के लिए फैक्ट्रियां लगाईं जो पानी से चलती हों। न सिर्फ ये, बल्कि सुल्तान ने बारूद की फैक्ट्री के साथ पानी का तराब भी बनवाया ताकि आग लगने की सूरत में फौरी तौर पर बुझाई जा सके। ये एकदम यकीनन एक खुशगवार तब्दीली थी कि एक बार फिर उस्मानियों की डूबती नैया फिर से बच गई। यहाँ तक कि 18वीं सदी के इख्तिताम में एक उस्मानी एहलकार महमूद आफंदी ने कहा कि हमारा गैर मुल्की बारूद पर इन्हिसार खत्म हो गया, हमारे गोदाम भरे हुए हैं और फौजी मुहिम्मात के लिए भी हमारे पास काफी है। हमने तो इसे बरामद भी करना शुरू कर दिया है, यानी कि वो उस्मानी जो दूसरे ममालिक से बारूद मंगवाते थे अब वही मुल्क उनके गाहक बन चुके थे। नाज़रीन, इतनी सारी कामयाबी के बाद सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब उस्मानी असलहा बारूद की मुतअद्दिद फैक्ट्रियों और बड़े बड़े तोपखानों के मालिक बनकर पूरी दुनिया पर अपनी धाक और दहशत बिठा चुके थे, तो ये सिलसिला रुका और टूटा कैसे। सदियों तक लाखों मुरब्बा किलोमीटर पे फैली सरहदों और हर सम से जंगी मैदानों में अपनी बर्तरी कायम रखने के बाद सल्तनत उस्मानिया को मसाइल कहाँ आना शुरू हुए। तारीख बताती है कि इसकी बहुत सी वजूहात थीं। ताकत के नशे में चूर उस्मानियों ने अपनी सारी तवज्जो जंगली असलहे और हथियार बनाने में लगा दी। इस तमाम तर पैदावार से खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। उस्मानियों की दहशत दिन ब दिन जहां उनके बनाए असले के जोर पर बढ़ रही थी, वहीं मुल्क के अंदर माली हालात खराब होना शुरू हो गए। बहरा रोम के इलाकों में इतना बुरा हाल था कि इक्तिसादी सूरत हाल खराब हुई और एक बड़ी इमदाद की जरूरत पड़ गई, जिसकी वजह से कई कारखाने पैसे न होने की वजह से बंद करना पड़े। इसके अलावा जो एक और वजह उस्मानियों के जवाल का बायस बनी वो थी जब उस्मानी अपने अखराजात और अचानक इक्तिसादी मामलों में फंसे, यानी कि पैसे ना होने के मामलों में फंसे। तो उस दौरान यूरोप में बड़े पैमाने पर इक्तिसादी और इंतजामी इस्लाहात की जा चुकी थी। पूरा यूरोप साइंस और फाइनेंस के मैदान में बहुत आगे निकल चुका था। उस्मानी जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी फतह और कामयाबी समझ रहे थे वो उनकी सबसे बड़ी नाकामी और गलती साबित हुई। उस्मानी मुसलसल बारूद और गोला तो बनाते रहे, लेकिन ये समझ नहीं आई कि वो ये इतना गोला और बारूद आखिर किसके लिए बना रहे थे। क्योंकि नाज़रीन, सन 1226 से सन 1683 तक यूरोप में सिर्फ 2 बड़ी जंगें लड़ी गईं। सुल्तान की फौज ज्यादातर मुहासरों में लगी रही, यानी कि जब जंगें हुई ही नहीं तो इतनी तैयारी किस लिए की जाती थी। इतने बड़े पैमाने पर पैसा बर्बाद किया गया कि बाद में आम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उनके पास कोई पैसे न थे और आसपास बैठे दुश्मन ताकतवर हो चुके थे और कल के शानदार सुल्तान अब कमजोर हो चुके थे। वो इस्तांबुल फाउंड्री जहां कल तक लोग काम करने के ख्वाहिशमंद थे, वो इस्तांबुल फाउंड्री अब बंद होती जा रही थी। जहां सैकड़ों के हिसाब से तोपें बनती थी, वो कारखाना अब बंद पड़ा था। पैसों का बड़े पैमाने पर ना होना चीजों को खराब कर रहा था। ना कोई नज़्म व नस्क था और ना ही कोई सरमायादार।
आहिस्ता आहिस्ता सब पीछे हटते जा रहे थे। और फिर रही सही कसर सल्तनत उस्मानिया की 28वें सुल्तान सलीम सालिस ने 1789 से 807 तक रहने वाली हुकूमत ने पूरी कर दी। हुआ कुछ यूं कि सुल्तान सलीम ने एक नई फौज बनाने का सोचना शुरू कर दिया। वो न्यू मॉडल आर्मी लाना चाहते थे और इसी सोच ने उन्हें किसी भी चीज में कामयाब ना होने दिया, बल्कि वो भी अपनी जान से गए। सुल्तान सलीम सालिस ने कदीम जनिसरीज के बदले निजाम जदीद के नाम से एक फौज शुरू करने का मंसूबा बनाया, जो कि यूरोपीय अफवाज के मेयार और उनकी सतह पर लड़ने की अहलियत रखती हो, और उनकी तरबियत भी इसी लिहाज से की जानी थी, जिसके लिए अखराजात भी बढ़ जाने थे, जो कि हुकूमत के लिए मुमकिन ना था। इससे बढ़कर ये बात जनिसरीज के लिए खतरनाक थी, इसीलिए उन्होंने बगावत की, जिसके नतीजे में सुल्तान सलीम को माजूल करके जनिसरीज ने मुस्तफा चहारम को सुल्तान बना दिया। अजीम फातेह उस्मानी अपनी ही फौज के हाथों यरगमाल बन गए, और तब ना उनके काम वो तोपखाना आया और ना ही इस्तांबुल फाउंड्री। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की मुकम्मल तारीख पर एक मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।